Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Hello and welcome back to Steven Sir Makes It Easy, where the plan today is to uncomplicate one of the distinction between in the subject of SP. तो SP के सब्जेक्ट के अंदर जल्दी से आपको मैं याद दिला देता हूँ कि हम किस मोड पर अभी तक है। चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत काफ़ी टाइम पहले हो चुकी है। उसमें हमने सोर्सेज ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस करके ये कॉन्सेप्ट सीख लिया कि पैसे को जोड़ना कंपनी कहाँ कहाँ से करती है। हम ओन्ड कैपिटल के ऊपर हमारे पैसे पर ध्यान दे रहे हैं। उसमें हमने शेयर्स और हमने इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स समझ लिया है। हाँ, तो क्योंकि पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने ध्यान इस पे दिया है कि इक्विटी क्या है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस क्या है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, आज हम दोनों के बीच में थोड़ा मुकाबला करवा देते हैं ताकि हमको आमने सामने ये पता चले तुझ में क्या है जो इसमें नहीं है, इसमें क्या है जो तुझ में नहीं है। तो वी आर ट्राइंग टू वेरी क्विकली इन लेस अमाउंट एज टाइम एज पॉसिबल, बिकॉज दिस इज नथिंग न्यू। अगर आपने पिछले लेक्चर्स में ध्यान दिया है ध्यान से, तो आपने इक्विटी के फीचर्स और प्रेफरेंस के फीचर्स ज़रूर किए हैं। तो यही फीचर्स को आपको लेना है, यही फीचर्स के मुद्दों को, पॉइंट्स को आपको लेना है और आपको डिस्टिंक्शन बिटवीन ये दोनों शेयर्स के कराने हैं। तो कभी आप मीनिंग के एंगल से देख सकते हो, कभी आप इन्वेस्टर के एंगल से, कभी आप कैपिटल अप्रिसिएशन के एंगल से, कभी आप फेस वैल्यू के एंगल से, कभी आप रिस्क के एंगल से। आई रिपीट, एंगल एंगल एंगल। राइट एंड बोनस शेयर्स, नेचर ऑफ इन्वेस्टर, आई रिपीट, these are the features, and it is from the features itself that you can learn the distinction between equity and preference shares. तो टेक्निकली मैं कोई चीज़ नया नहीं पढ़ा रहा हूँ, बट आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि नया आंसर ज़रूर है, आंसर को लिखने का तरीका अलग ज़रूर है, बट उसमें जो मसाला है ना, कंटेंट जिसको कहते हैं, वो अलग नहीं है। तो हमारे कुछ मुद्दे जो हम जल्दी से डिस्कस करेंगे ताकि हमको डिस्टिंक्शन बिटवीन इन दोनों का क्लियर हो जाए। मीनिंग, अगेन, इक्विटी का मतलब क्या है? एक्चुअली पहले ऐसे कहा है, जो प्रेफरेंस नहीं है उसको इक्विटी शेयर्स कहते हैं, तो वो गलत नहीं है, वही आपको यहाँ पे बोलना है। हाँ, प्रेफरेंस शेयर्स का मीनिंग क्या है? जिनको पैसे डिविडेंड का पहले मिलता है और जो कैपिटल वो डालते हैं वो भी पहला पैसा उनको मिलता है। तो ये मीनिंग हो गया जो नया नहीं है, फीचर्स में से ही लिया गया है। रेट ऑफ डिविडेंड, क्योंकि जब आप शेयर्स खरीदते हो तो आपको डिविडेंड मिलना चाहिए,
इक्विटी शेयर होल्डर का रेट पक्का नहीं होता, 2%, 5%, 10%, 20%, कुछ पक्का नहीं होता। प्रेफरेंस वाले का पक्का होता है क्योंकि उसके नाम के बगल में लिखा जाता है 2% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 5% प्रेफरेंस, तो उसको पता है अरे मेरे नाम के तो बाजू में लिखा है, मेरे को तो 5% मिलेगा। इक्विटी शेयर होल्डर जब लेता है उधर इक्विटी शेयर ही लिखते, उसको पता नहीं होता अरे यार कितना मिलेगा ये साल, क्या पता, देखते हैं जब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसे डिक्लेयर करे। ओके, तो वो एक नजरिया हो गया। वोटिंग राइट सिंपल रखे तो इक्विटी शेयर होल्डर को एजीएम में आना, अटेंड करना और वोट करने का पूरा हक है। नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वो वोटिंग राइट मिलता नहीं है, कुछ सिलेक्टेड मौके पे मिलता है, बट आप इतने डिटेल में ना जाए, आप इतना ही याद रखें कि इक्विटी वाले को वोट करने का पूरा हक है, डिसीजन लेने का पूरा हक है। नॉर्मली 99% प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलता नहीं है। रिटर्न ऑफ कैपिटल, जो पैसे डाले हैं वो पैसे वापस मिलेंगे, नॉर्मली इक्विटी वाले को मिलता नहीं, वो पैसे अटक गए पूरे जिंदगी के लिए, कंपनी की पूरी जिंदगी के लिए। डिविडेंड मिलेगा ना, हर साल डिविडेंड आपको मिलेगा। हाँ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अरे नहीं, उसको तो पक्का पैसे वापस मिलने वाले हैं, क्योंकि अगर एक तरीका होता है रिडीमेबल प्रेफरेंस, उस पर तो डेट होता है, साल होता है, ये दिन पे ये साल में आपको आपका पैसा मिल जाएगा, तो वो हो गया रिटर्न ऑफ कैपिटल। नेचर ऑफ कैपिटल वेरी इंपॉर्टेंट, इक्विटी को क्या कहते हैं, रिस्क कैपिटल, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जस्टिफाई में अग्री डिसअग्री ट्रू और फॉल्स में ये आता है। इक्विटी को क्या कहते हैं, रिस्क कैपिटल, प्रेफरेंस को नहीं, प्रेफरेंस को क्या कहते हैं, सेफ कैपिटल। क्यों रिस्क है, क्योंकि इक्विटी में पैसे डाल दिए फिर कितना मिलेगा वापस, डिविडेंड नहीं पता, अरे इक्विटी ही कब हमको मिलेगा वापस, कैपिटल नहीं पता। प्रेफरेंस वाले का ऐसा नहीं है, उसको डिविडेंड भी मिलता है और उसको उसका जो मेन पैसा है वो भी मिलता है, तो वो सेफ है, इसके लिए ऐसे कहा जाता है। देन नेचर ऑफ इन्वेस्टर, जो पैसे डाल रहा है वो कौन सा माइंड सेट रखता है, वो कौन सा सोच रखता है। देखो भाई, इक्विटी वाला रिस्क लेने वाला बंदा है, जो होगा देखा जाएगा, डर के आगे जीत है, ऐसा वो सोचता है। प्रेफरेंस वाले का ऐसा नहीं है, प्रेफरेंस वाला क्या बोलता है, नहीं 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 नहीं, हमको रिस्क नहीं लेना, हमको तो इतने ही पैसे चाहिए। तो उम्र का अगर हम थोड़ा थिंकिंग रखें, जो हमारे वृद्ध लोग हैं, सीनियर लोग हैं, वो नॉर्मली जो रिटायर्ड है, हमको रिस्क नहीं चाहिए, हम प्रेफरेंस शेयर्स खरीद लेंगे। जो नौजवान है, जिनमें खून कुछ ज्यादा ही गर्म है, वो बोलेगा नहीं मैं रिस्क ले लूंगा, कोई तकलीफ की बात नहीं है। तो ये हो गए 6 पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन, एंड आई एम रिपीटिंग कि प्लीज ये नया नहीं है, जो फीचर्स इसके पहले पड़े हैं ना, आप वही अभी एक अलग एंगल से सोच रहे हो। तो एक और एंगल हो गया फेस वैल्यू का, कि जो शेयर्स मैंने खरीदे उसका फेस वैल्यू क्या है, क्योंकि हर शेयर का एक वैल्यू होता है, फेस वैल्यू जिसको कहते हैं। देखो नॉर्मली इक्विटी का वैल्यू कम होता है, 1 रुपया 10 रुपया, 1 रुपया 10 रुपया, ओके, बीच में भी हो सकता है, वो कंपनी के कायदे कानून पे डिपेंड करता है। प्रेफरेंस इतना कम नहीं होता, प्रेफरेंस नॉर्मली थोड़ा ज्यादा डिनोमिनेशन का होता है, एटलीस्ट 100 रुपीज का तो नॉर्मली होता ही होता है, राइट। एंड बोनस इशू वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, मतलब राइट शेयर्स का मतलब क्या, देखो भाई, राइट शेयर्स का मतलब है पहला हक, शेयर्स खरीदने का पहला हक। जब एक कंपनी मार्केट में, शेयर मार्केट में शेयर्स बेचने आती है, 1 लाख शेयर्स, 2 लाख शेयर्स, तो अगर कंपनी का नाम बढ़िया है, तगड़ा है, सभी लोग भागते हैं, सबको खरीदना है, मेरे को भी दो, मेरे को भी दो, मेरे को भी दो। बट राइट शेयर्स का मतलब क्या है, कंपनी क्या बोलेगी, रुको 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 रुको, जनरल पब्लिक रुक जाओ, पहले हमारे लोग, पहले हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स, आप आओ आप आओ, आप लाइन में लगो, पहले आपको मौका मिलेगा खरीदने का, अगर आप ना करो तो चलो हम बाहर वाले को बेच देंगे। राइट, पहले हक खरीदने का इक्विटी वाले को मिलता है, बोनस शेयर्स इक्विटी वाले को मिलता है, प्रेफरेंस शेयर्स को नहीं मिलते हैं। तो ये इक्विटी के लिए पॉजिटिव खबर है, प्रेफरेंस के लिए नेगेटिव खबर है। कैपिटल अप्रिसिएशन का मतलब क्या, भाव बढ़ना, इक्विटी वाले का भाव जरूर बढ़ता है। कैसे, कंपनी का अगर परफॉर्मेंस मार्केट में अच्छा है, कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही है, कंपनी का टर्नओवर बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रहा है, मुनाफा बढ़ रहा है, तो इक्विटी वाले का भी जो कीमत है शेयर का बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, बराबर। हाँ, बट जब तक बात आती है प्रेफरेंस की,
उसका कोई कैपिटल अप्रिसिएशन नहीं, वो आज भी 100 है, कल भी 100 है, परसों भी 100 ही रहेगा, अप्रिसिएशन भाव में नहीं हो पाता। रिस्क, इक्विटी शेयर्स अगर आप लोगे तो हाई रिस्क है, बराबर, बट प्रेफरेंस शेयर्स अगर आप लोगे तो लो रिस्क है। ओके, जैसे कोविड के समय में ऐसा कहा गया था कि जो लोग कोमॉर्बिडिटीज, मतलब जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है, जिन लोगों को डायबिटीज़ है, ओके, अलग अलग बीमारियां हैं, वो लोग हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, उनको अगर कोविड हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा। हाँ, बट बाकी जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, जिनको ऐसे कोई कोमॉर्बिडिटीज मतलब बीमारियां नहीं है, उनको लो रिस्क कैटेगरी में, तो उसका मतलब रिस्क होता है। आखिरकार टाइप्स, ये तो हमने लास्ट लेक्चर में ही किया। इक्विटी के 2 टाइप्स होते हैं, एक विथ नॉर्मल वोटिंग राइट्स, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। बट जब तक बारी आती है प्रेफरेंस की, उधर एक लंबा लिस्ट था, क्यूम्यूलेटिव, नॉन क्यूम्यूलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल, इररिडीमेबल। हाँ, बट लिस्ट काफ़ी लंबा था, बट टाइप्स में ये मुद्दा आ जाता है और इससे आपके 11 डिस्टिंक्शन बिटवीन के पॉइंट्स ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। ओके, आपको 11 के 11 ऐसे पूरी तरह से याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये पूरा आंसर फीचर्स के आंसर से मिल जाएगा, और दोनों के फीचर्स के लिए हमने तो वैसे भी आपको जो कोडिंग है ना देखे रखा है। तो आई होप ये डिस्टिंक्शन बिटवीन ज़्यादा समय में नहीं लूँगा, फॉर द वेरी सिंपल रीज़न कि फीचर्स में ऑलरेडी ये कवर्ड अप था, तो कुछ नया यहाँ पर नहीं था। बट द मोमेंट आप डिस्टिंक्शन करते हो, एक तरीके से रिविजन हो जाता है, और जो ऑब्जेक्टिव स्टाइल में आंसर्स आ सकते हैं, क्वेश्चन आ सकते हैं, वो भी आपका क्लियर हो जाता है। आई होप एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो लाइक ज़रूर कर लेना, डिसलाइक करते हो तो कोई बात नहीं है, कमेंट बॉक्स का उपयोग करके एटलीस्ट इतना आप बता दीजिए कि हम इम्प्रूव कहाँ पर कर सकते हैं, या आपके पास हमारे लिए कोई भी सजेशन है। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, दूसरे लोगों तक हमारे चैनल की जानकारी ज़रूर पहुँचा दीजिए। जब तक हम दोबारा ना मिले, अपना ख्याल रखिए, अपने बड़ों का, अपने छोटों का, अपने परिवार वालों का हमेशा ख्याल रखें। ओके, स्टे सेफ, इफ पॉसिबल जितना हो सके स्टे इंडोर्स। जब तक ना मिले, गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।